Hello everybody, myself Ayush Goel, Head of the Department Mathematics at Reliable Institute Kota, and I am delighted to share the solutions of JEE Mains 2023 April attempt. Today is 6th April and at present it is 1 p.m. while we are recording, and I am deeply thankful to our students who helped us cracking these questions so fast through their memory. So without taking much time, let's start the questions. The first question was a modulus equation problem wherein they asked the sum of all the possible solutions. So what one can do is, you can just formulate this equation 8x plus 15 plus 15. This is equal to 2x minus 7. Now open the mod with plus and minus with a commitment that we will certainly cross check the solutions. So with a plus 1, you're going to get this one. Hence x square minus 10x plus 22. This is equal to 0. X is equal to 10 plus minus 100 minus 88 divided by 2. So that will be 12. So 5 plus minus root 3, right? Now if you were to take 5 minus root 3 here, so twice into 5 minus root 3 minus 7. So that is 10 minus 7 minus 2 root 3. So this is a negative thing, while left hand side is positive. Remember, if you are opening the mod with plus minus without applying any cases, that I didn't say that when this is positive, when this is negative, right? I am just applying it positive and negative. So you need to cross check your answer, and what you need to cross check is just the signs, that left hand side is bound to be positive, so right hand side should also be positive. Hence we reject 5 minus root 3. So 5 plus root 3 is accepted, because once you put 5 plus root 3, this will be positive. Similarly, let's open with this as a negative sign. So x square minus 6x and plus 15, this is plus 15, plus 15 minus 7, this is going to be 8. So x barabar 2 and 4. Again, if we were to put 2 here, this is going to be negative. Hence, reject x barabar 2 also. But at 4, this is going to be positive. So this is also accepted. Hence, just add them and you should get the right answer. That is 9 plus root 3. I will rate this problem as an easy one. Most of the students are comfortable in such petty equations. Let's move on to the problem 2. Now, it was from the house of binomial. A binomial was given और आपको x की पावर 18 का कोफिशिएंट पूछा गया था. तो इसका जनरल कोफिशिएंट लिखेंगे तो 15cr minus 1 upon x cube power r and x की पावर 4 की पावर 15 minus r. So collect the coefficient of x cube, which is minus 3r. x का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेते हैं. minus 3r plus 60 minus 4r और x का कोफिशिएंट पावर होनी चाहिए 18. तो आपने x का एक्सपोनेंट कलेक्ट किया. So you're going to get 7r. This is equal to 42. Hence r is equal to 6. r की वैल्यू 6 आ गई. आपको कोफिशिएंट चाहिए था. So this will be 15c6. r की वैल्यू 6 है. So ये प्लस 1 में मैनिफेस्ट होगा. Hence this is the coefficient 15c6. The correct answer is, I think so there is some mistake over here. The correct answer is third choice. Okay. Yeah, let me just cross check. 15c6. Yes, है ना? So just disregard this second. This is the third choice. Let's move on to the second one. Third question. इस क्वेश्चन को भी मैं एक इजी क्वेश्चन रेट करूंगा. ये सभी बच्चों से हो जाना चाहिए. बहुत ही प्रोफाइल बेस्ड प्रॉब्लम है. थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं. Here a series was sequence was given और इस सीक्वेंस का हमें 20 टर्म्स का सम निकालना था. तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें इसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा वाया वीएन मेथड. कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस, हम ऐसे कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस लेते हैं. तो 11 minus 5, this is going to be 6. 19 minus 11, this is going to be 8. 29 minus 19, 10. 29 minus 41, that is 12. हम कंसेक्यूटिव डिफरेंस तब तक लेते जाते हैं जब तक आइदर कांस्टेंट या जीपी ना आ जाए. तो आपके पास कांस्टेंट आ गया है. ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल. अगर सेकंड लेवल पे कांस्टेंट आता है तो स्टूडेंट्स रिमेंबर इट इज गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इन एन. अगर थर्ड लेवल पे कांस्टेंट आता है तो इट्स गोइंग टू बी अ क्यूबिक इन एन. तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, राइट.
अब इट डिपेंड्स, जैसे वाइल टीचिंग ऑल्सो ऐसे कि आप T0 से अपनी सीक्वेंस स्टार्ट करना चाहते हैं या T1 से। T1 समझने में आसान रहता है, तो लेट मी पुट माय सॉल्यूशन इन दैट वे ओनली। आपने T1 लिया तो ये 5 A प्लस B प्लस C। सिमिलरली आपने T2 लिया तो दिस इज गोइंग टू बी 11, T2 is going to be 4A plus 2B plus C, and T3 is going to be 9A plus what? 3B plus C. आपके पास ये तीन इक्वेशंस हैं और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। टू सेव टाइम मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, A बराबर C बराबर 1 आएगा और B बराबर 3 आएगा। आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स कि जब आपका ये आ जाए तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करें कैलकुलेशन को। राइट हियर आपने n को 1 डाला, आपके पास 5 आ रहा है, 2 डाला 4 प्लस 6 प्लस 1 11 आ रहा है। लाइकवाइज ये सही निकला है। ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट? सम इज समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। आप ये तीनों का अलग अलग समेशन ले लें, सिग्मा n स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहां पर 20 है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, सिग्मा 3 सिग्मा n तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2, सिमिलरली सिग्मा 1 दैट इज गोइंग टू बी 20, है ना। वैसे इफ आई वर टू डू बाय माई सेल्फ, मैं 0 से ही स्टार्ट करता हूं सो दैट द कैलकुलेशंस कुड बी इजी। आई कॉल माई फर्स्ट टर्म टू बी 0, but I am presenting the solution from n बराबर 1 which is lucid and easy to understand. इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कहूंगा और केवल मॉडरेट का लॉजिक ये है कि बच्चे वीएन मेथड कई बार भूल जाते हैं कि जनरल टर्म कैसे पहचानेंगे, राइट। अगर आपको ये याद था तो ये इजी ही है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलें अगर हम, ये पीएनसी का है और बहुत ही मुंडेन रेगुलर क्वेश्चन है। जो बच्चे हमें बता पाए वो ये था कि द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 20 चॉकलेट्स। अब यहां पर चॉकलेट्स डिस्टिंक्ट थी नहीं थी ये लिखकर नहीं आया था पेपर में, बट एज पर द चॉइसेस वी हैव इंटरप्रेटेड द चॉइसेस चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल, है ना। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 चॉकलेट्स अमंग 3 स्टूडेंट्स। तो ये 3 बच्चे हैं, S1 S2 S3। मान लीजिए इसको X1 चॉकलेट्स मिलती हैं, इसको X2 चॉकलेट्स मिलती हैं और इसको X3 चॉकलेट्स मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है x1 प्लस x2 प्लस x3 is going to be 20. अब each of the student gets at least one chocolate. So we cannot apply the beggar method. At Kota we call them a beggar method. Theoretically it is a multinomial approach. So here we will make them as beggars. Likewise x1 1 या 1 से बड़ा था, so जो x1 dash है that is going to be greater than equal to 0, so as x2 and so as x3, right? तो x2 भी greater than equal to 0 आ गया dash and x3 dash भी greater than equal to 0 आ गया। इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। तो x1 dash plus x2 dash plus x3 dash this is equal to 17। नाउ सिंस दीज आर 0 और 0 से ज्यादा, नन 1 और मोर का केस, ये क्लासिक एग्जाम्पल बन गया है बेगर का। तो हेंस n प्लस नंबर ऑफ पर्संस p minus 1 cp minus 1, so this is nothing but 19c2. So that's the second choice. Now this is again a very easy problem. I will not rate it as moderate, और ये most of the बच्चों ने क्या होगा, they seldom forget these formulas. ये formulas बच्चों को याद रहते हैं। फिफ्थ की बात करते हैं। तो ये जो बाइनोमियल है तो इसके अंदर हमें फिफ्थ टर्म का रेशियो स्टार्टिंग से और एंड से, इन दोनों का रेशियो √6 दे रखा है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है बाइनोमियल का इस बार। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर x प्लस वाई पावर n का फिफ्थ टर्म लेना है और अगर इसी का फिफ्थ टर्म पीछे से लेना है तो इट इज बेटर ऑफ हम y प्लस एक्स का फिफ्थ टर्म ले लें, और इन दोनों का रेशियो हमें √6 दिया हुआ है। तो इसका फिफ्थ टर्म लिखते हैं nc4 3 की पावर -1/4 की पावर 4 एंड 2 की पावर 1/4 की पावर n-4 डिवाइड बाय nc4 2 की पावर 1/4 की पावर 1/4 एंड 3 की पावर -1/4 की पावर n-4। नाउ दिस इज √6। nc4 कैंसिल हुआ
तो 2 की पावर 1/4 की पावर n-8 एंड 3 की पावर -1/4 की पावर n-8। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 6 की पावर 1/4 दैट इज √6 की पावर हाफ n-8/2 और ये तो √6 है ही, तो यानी कि n माइनस एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दें तो आपके पास n 10 के बराबर आ गया। अब आपके पास जब n 10 आ गया तो ये पूरी चीज तरीके से क्रैक हो गया, तो आपको इसका थर्ड टर्म ही तो निकालना है। सो दैट इज नथिंग बट n 10c2 3 की पावर -1/4 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1/4 की पावर 8। सो 10 इंटू 9/2, 2 की पावर 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये √3 में आ जाएगा, राइट। 9 से √3 ऑफसेट हुआ, ये 2 आया, सो 20 इंटू 3 इंटू √3 दैट इज 60 √3 विच इज योर सेकेंड चॉइस। तो ये क्वेश्चन भी फेयरली इजी है, इजी से मॉडरेट केवल इसलिए ले लें कि अगर बच्चे y+x नहीं करते हैं तो दे में एंड अप इन सम कॉम्प्लिकेट इक्वेशन जहां पर ये NC4 कटेंगे नहीं, लेकिन वैसे ही देखा जाए तो दिस प्रॉब्लम इज क्वाइट इजी। तो अभी तक जो मैंने 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस करे सारे ही इजी क्वेश्चंस थे।